Okay student, today we'll discuss spherical capacitor. We know that three type of capacitors are there. First is parallel plate capacitor, second is spherical capacitors, and third is cylindrical capacitor. We know that parallel plate capacitor is in the board level, but spherical and cylindrical capacitors are not at the board level, but at competitive level these two are important, right? So today we'll discuss spherical capacitor. As their name, we need spherical surfaces for spherical capacitors, and we know that we need two surfaces to make a capacitor, right? Let us take first surface. This is our first surface, first spherical capacitor surface, right? And concentric sphere, another sphere is this. This is outer sphere. Okay, outer sphere is, we know that outer surface for the second surface is earthed or grounded, right? And inner surface is, let's suppose, charged by positive charge like this. So there are induced charge on the another surface. There is negative induced charge on this surface, right? Due to this positive charge, potential at distance, let's say this radius for this outer surface is R1. Radius for outer surface is R1, and the radius inner surface is, let's say, R2, right? Potential due to this positive charge plate is at outer surface is, let's say, V1, and at the inner surface the potential is, let's say, V2, right? According to the definition of electrostatic potential, we know that when we take a charge from infinity to some distance, then we have to do some work, and that work done is potential, right? So when we take infinity to R1 charge, the potential, let's say, V1, and we take charge up to R2, then potential is V2, right? So for spherical capacitor, we have to find out what? Capacity or capacitance. The formula for capacity is Q by V. We need to find out V here, right? And V is what? V is what? Potential difference, and potential difference is what? This, right? So total potential for this is what? V1, V2 minus V1. That is the net potential due to this spherical capacitor, right? According to the formula, potential difference Q upon 4 pi epsilon naught R. We know that this formula. According to this formula, total V is equal to, V2 is what? Q charge is there. Let's say this is Q charge, Q upon 4 pi epsilon naught R, V2 R2, right? And minus Q upon 4 pi epsilon naught R1. ओके, नाउ कॉमन टर्म जो है कॉमन कर देंगे. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? कॉमन है. इनसाइड हमारे पास क्या आ रहा? 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V, नेट पोटेंशियल V. तो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी C Q बाई V. तो हमारे पास C क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट? V की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1. ओके, Q से Q कैंसल आउट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एंड दिस इज इनवर्स 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 होल पावर इनवर्स, राइट? सिंपल. एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इजीली इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम R1 R2 R1
माइनस R2, तो उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 ऊपर एंड बिलो R1 माइनस R2. दिस इज द कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स. तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, तो कैपेसिटी हमारे पास क्या आई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2. दिस इज द कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट. अगर मैं कहूँ R1 को मैं इन्फिनिटी तक लेके जाऊँ, अगर फर्स्ट केस, अगर मैं केस डिस्कस करूँ कि मैंने R1 को क्या पुट कर दिया इन्फिनिटी, R1 लेट्स सपोज दैट इज़ व्हाट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू. तो R1 को इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, राइट. तो क्या होगा 1 अपॉन R2 का इनवर्स. तो हमारे पास जो C है कैपेसिटी क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2, और दैट इज द सिमिलर एज वी डिस्कस्ड अबाउट फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए यही तो थी 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, सिर्फ सिंगल सरफेस, अनदर सरफेस इज एट इन्फिनिटी. तो अर्थ के लिए हमने ड्राइव किया था, राइट. और अर्थ के केस में अगर ये रेडियस अर्थ की है, मैं इस स्फेरिकल को अर्थ मान लूँ, और ये रेडियस अगर अर्थ की है तो अर्थ की रेडियस कितनी थी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, राइट. तो वैल्यू पुट करेंगे तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी 711 माइक्रो फैराड, राइट. दिस इज समथिंग अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर्स, राइट. तो इट वेरी इजी, टू surfaces we have to find out net potential and formula for capacitance is C is equal to Q by V. V की वैल्यू पुट कर देंगे and we have capacity for spherical capacitors. Now our next topic is cylindrical capacitor. We discuss cylindrical capacitors. Right. Now सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अगर मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करूं तो एज देयर नेम सिलेंडर वी नीड टू सिलेंडर एट कोएक्सियली प्लेस्ड, राइट. लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट सिलेंड्रिकल सरफेस like this, and this first surface is positively charged. Inside there is no charge, right? And this is their axis of rotation, we can say, right? And another surface coaxially placed like this, another surface which is coaxially placed over here, right? And outer surface of this second sphere is, we know that, grounded, right? And due to this positive charge there is some induced charge inside this sphere, inside this cylinder. Okay, so electric field is, direction of electric field positive to negative is like this. This is electric field generate is, let's say E is the electric field generated, right? Due to this cylinder, due to this inside cylinder positive charge, electric field at the second surface क्या होगा, electric field क्या होगा, we know that, हम find out कर चुके हैं, Gauss law में हमने किया था, due to a straight line, and this positive charge is behaves like the whole charge is concentrated at this line. Okay, so lambda 2 pi epsilon naught r, right? And the direction of this electric field is radially outward. It's something like this, lambda 2 pi epsilon naught r, ये हम पढ़ चुके हैं, right? And electric field क्या होता है, electric field is equal to minus dv by dr. यहाँ से हम रिलेशन देख सकते हैं. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सेम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, V. यहाँ से क्या मैं V फाइंड आउट कर सकता हूँ, आइए देखते हैं. इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ dV
is equal to minus EdR. Can I write it like this? Right? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं अप टू, इंटीग्रेशन कर देते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, तो क्या होगा? पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. राइट? फॉर फर्स्ट सरफेस लेट्स से its radius of this first surface is, let's say, RA inside surface, right? And radius of that bigger surface, the bigger cylinder, is RB. RA, RB या R1 R2 भी आप मान के चल सकते हैं. आप कुछ भी R1 R2 मैंने सफेरिकल के केस में यूज़ किया था, तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ RA RB. राइट? तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dV विच इज़ इक्वल टू माइनस EdR, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आया RB पे, RB से मैं कहाँ लेके आया? RA. राइट? तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ होगा? दिस इज इनिशियल फाइनल. RB से मैं कहाँ तक लेके आया? RA. तो ये कहाँ से कहाँ होगा? RB टू RA. दैट इज द इंटीग्रेशन. ओके. E की वैल्यू इन टर्म ऑफ R यहाँ से मैं फाइंड आउट यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन RB टू RA एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? एंड विद नेगेटिव साइन आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr. क्लियर? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, कम्स आउट, तो मीन्स इट लाइक दिस, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन RB से RA 1 अपॉन R dr. राइट? इंटीग्रेशन 1 अपॉन R क्या? log R. तो इंटीग्रेशन 1 upon R is ln R and limit RB to RA and lambda minus lambda upon 2 pi epsilon naught कांस्टेंट था साथ के साथ. राइट? लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln RA माइनस ln RB कंबाइन करेंगे. m माइनस n है तो m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस L 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln RA डिवाइडेड बाई RB. दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. दिस नेगेटिव साइन गोज इनसाइड द ln, तो दिस इज इन्वर्टेड. ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल जो आएगा, दिस इज व्हाट? फाइनल पोटेंशियल V. तो V हमारे पास क्या आया? V आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, राइट? ln नेगेटिव साइड गोज इनसाइड, मीन्स RB डिवाइडेड बाई RA. राइट? दिस इज आवर पोटेंशियल. बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? कैपेसिटी. तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी. आइए देखते हैं. कैपेसिटी इज़ हेयर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ लाइक दिस. ओके. तो कैपेसिटी क्या होगा? C इज इक्वल टू Q बाई V, और V हमारे पास ये था, मीन्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln RB डिवाइडेड बाई RA. This is our capacity. This is our capacity. Right? This is the expression for capacity of a cylindrical capacitor. Capacity of a cylindrical capacitor. इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूं लैम्डा इज़ व्हाट? लैम्डा इज़ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो लैम्डा हमारे पास क्या था? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ. अगर मैं इसकी लेंथ L मान के चलता हूँ तो लैम्डा क्या होगा? Q अपॉन L. राइट? तो लैम्डा क्या था?
टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल, तो हम L की टर्म में C को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, लैम्डा की जगह Q बाई एल पुट करेंगे तो क्या होगा, Q अपॉन Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल एन आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। Q से Q कैंसल आउट, ये ऊपर, तो कैपेसिटी क्या आएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल अपॉन एल एन आर बी divided by RA. This is our final expression for the capacity of a cylindrical capacitor.